Okay, first of all, buy crypto, whatever it is. Why can't someone implement blockchain in voting? Is there a practicality of it? Like कोविड के टाइम पे if you had taken 2 vaccination shots, आपको एक कार्ड मिलता था कि you are certified, right? So that entire card, it was built and verified on blockchain only. रिप्लेस नहीं, पूरा डिलीट ही कर देते अपनी आइडेंटिटी. आई डोंट नो हाउ. मतलब अगर किसी को गायब होना है तो दिस इज द मेथड आई वुड से. Now RBI is obviously afraid because like if people start using crypto more, who will use INR? Who will use rupee? That is the question. Also money laundering भी काफ़ी politicians ही करते हैं. कितना सिंपल है. नॉर्मल स्टार्टअप की तरह फाउंडर को फंड रेजिंग मिल गया है, ठीक है, अभी खुद का सैलरी ड्रॉ करेगा एंड दैट इज़ इट. इसलिए काफ़ी बार ऐसा हुआ है, हैकर्स हैव स्टोलन मनी बट दे आर नॉट एबल टू टेक इट आउट ऑफ द सिस्टम ओनली. तो जो मनीज़ है, फियाट मनीज़ है, दे ऑपरेट ऑन द फैक्टर ऑफ ट्रस्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम. बट यू वांट टू गेट स्टार्टेड इन वेब3, वहाँ पे एक जॉब करना है, एक एंट्री लेवल पे अगर तुम्हें जॉब चाहिए, हाउ विल यू डू दैट? Web3 is for someone who wants trouble. मतलब कुछ ना कुछ होते ही रहता है. They are sitting on an unrealized gain of 400-500K. They have not even started their startup. Enron हुआ था, उसके बाद पूरा financial markets collapsed. No, it was that big a scam. मतलब उसने Slack पे सिर्फ लिखा रहेगा कि I want a home और उसने दे दिया है घर. What? काफ़ी वो लोग का जो गेम्स Web3 में मार्केटिंग पे ही फोकस है. They are not actually building the game. Bitcoin के पीछे क्या खड़ा है? There is no intrinsic value. जो लोग ये बोलते हैं, they are right. There is no intrinsic value. And I said कि 2030 तक they say कि हो सकता है 2030-40 तक, but he said even quicker हो सकता है. Financial systems don't want crypto to come into their territory because उनको पता है कि उनका margin कम होने वाला है. So hello everyone, this is our second episode of the podcast. इसका नाम हमने finally सोच लिया है, which is Unhinged, because उसी की बात चल रही थी first episode में. So we have our second guest for this podcast, who is Harsh. He is the CFO of Magicraft. Magicraft is valued at what right now? I guess it is more than $50 million currently. No, it's around 25-30 million. Yeah, that's what I talked with Harshraj se, and he was saying ki, that is crazy. You are a CFO at that company at such a young age. So can you tell a bit about that company? Okay, Magicraft. Hi everyone, first of all. So Magicraft is a P2E game. P2E essentially means play to earn, wherein you get rewards in their own native currency called MCRT when you play and win. So it is everywhere. It is on Steam. It is on iOS. It's a phone. You can play it on your phone. You can play it on your PC. You can play it everywhere. And it is a MOBA style game wherein you fight. You make teams and fight, and whoever wins, gets MCRT. And I've seen like testimonials from there. People are earning and they have bought themselves their own PC setup just by playing Magicraft. I mean, we have seen like 10 to 15 people in Telegram. That's what I've seen. So how does it work? How does Magicraft ask players to play, and after they play, how they are able to earn it? How does the tokenomics work? Okay, so essentially now we have our various now people obviously if now play to earn's biggest fault is if you keep on paying people, it is going to end, your game is going to end at some point of time. So it should be more like a play and earn. So we are focusing on that, wherein it is not a game that is just based on earning. Like if you see like Axie Infinity, which was a very famous game at one point, it came down. Why? Because its main focus shifted on earning. Even if you read their white paper, उन्होंने white paper में लिखा है कि their main focus is on blockchain and the gameplay comes later on. Okay. Right? So they had a huge focus on earning. This is why you might have heard कि many might have called it a Ponzi scheme. So that obviously remains a doubtful question. But for us to succeed, what we focus on is that a player should also actually like playing the games. We have seen कि like if you play games that in which there is winning and losing involved, it is a battle type game wherein you fight with your magical powers or whatever. So it is quite interesting. You can play it locally also. We can create a lobby and play it, so it is also accessible. Right? So it also creates that thrill factor, because if I'm only playing it for earning, you don't earn. And we have also our own marketplace. So if you are a very good player, you would want to buy skins, you would want to improve your various skills, you would want to invest more time in the game, because of which मतलब player जितना ecosystem में रहेगा, he will end up paying at some point or other, right? So we are focusing on that part. Okay, so basically just how like Web2 games work, like COD, they are creating an ecosystem, but they don't have this thing where people get paid to play this game.
you are creating an ecosystem, plus there is another factor ki okay, you are also getting paid, but Yeah. that is not something that you are capitalizing on. That is just a good to have thing, right, for Magicraft. Yeah, so we also have various NFTs that we sell. We also have a in-game marketplace. We are also focusing on developing more things that we can sell. We are also creating an entire Magic verse where we are going to add hyper casual games. Hyper casual games are a really great thing that is happening right now in the mobile Is it game like market. Roblox? No, not Roblox. Hyper casual games would be more like your match 3 games, like Magic 8 Ball games. We've come up with Magic 8 Ball, Magic Runner. So hyper casual games basically means that the games that you play for only 10, 15 minutes, 20 minutes. Those kind of games. Roblox is an entire different world. Yeah. I think Sandbox, they are doing something like Roblox or Minecraft. Okay. What's the Indian vertical for Sandbox? If you have any idea, like they're also developing in India, right? Yeah, Bharat Box. Bharat Box, right? You are right. Yeah, Karan Keshwani is Karan the founder. Keshwani is founder, Yeah. right? Yeah. They've been doing good. And also, what are the competitors in your field, like which are doing like really great and have raised? Is there any company which have reached a unicorn level yet in Web3 also? Web3, yeah, Polygon, Indian. Polygon has reached. There are various companies, obviously, in Web3. Gaming, I am not sure if gaming, there have people who've reached $1 billion valuation. Sandbox, I'm not sure. You might check it out. Sandbox, Yes, right? there's Sandbox. Axie Infinity at one point of time was doing great because it, like, keeping the player winnings aspect aside, they sold a lot of NFTs. At one point of time, they had sold millions of dollars of NFTs. Right. Unka kya tha? Like, to enter the ecosystem, you have to buy at least 3 Axies. And at an average, it costs around $100 to $300. Imagine selling millions of these NFTs. Right. So it worked very good for the Sky Mavis, that's the game developer. But I don't know about the players who joined later on. And how like awareness is working like this? Like how you guys are marketing this thing, right? Because I guess there are very few people who know about this. Like I guess we are us, and there is no like this thing is not getting marketed heavily on Instagram to the Indian audience, I guess. So how does marketing work? in Yeah, this? you mean Play to Earn, right? Play to Play to Earn Earn, and like- blockchain too. Yeah, I guess personally I discovered this via YouTube, like Play to Earn. Yeah, someone is typing how to earn from Web3. So how do you guys reach out to your target audience, like ideally? See, currently most of our gamers are located in Southeast Asia, where Play to Earn is the big craze. Right. So, but obviously we're also trying to reach out Indian markets, and for that a lot of awareness will be needed. Plus, they're also scared a bit because of what happened in 21, 22. Yeah. So yeah. Acha. Almost all influencers were promoting crypto and Unke at the peak ऐसा है. of the bull market, and it fell obviously. So people are a bit burnt yet I think, hence they're scared. So मतलब बहुत लोगों ने खरीदा रहेगा Doge and everything, right? So yeah. But I guess crypto did take off again, right? The Bitcoin has rised to like 78 to 80 lakhs, I guess. Yeah, मतलब I'm also hearing कि अभी और होने वाला है. 61, I think it's currently 61, 65. हाँ, वापस Ethereum is doing quite good. अभी ETF है ना ETF उसका. है ना. Right. So that's good. But it went down. मतलब I was thinking कि मैं futures में I will trade. मैं सोचा था कि long लूँगा, but I'm very lucky कि मैंने नहीं लिया. अचानक से it Ethereum. went. Yeah, Ethereum. Just after the news, I thought कि मुझे लेना चाहिए. But my friend said no, don't. And it went down for like 5%. मेरा 50% चला जाता. No, Ethereum, if you're simply buying it, it's okay. I've bought it since like a long time, and I've just kept it, and it's growing on its own. I have seen that, mining Ethereum and Bitcoin, like there are many Indian people who don't know about Web3 but still mining. Yeah. If you guys may know, the Solar Miner is a YouTuber who sell this, mining gigs. So like Ethereum, how this work out? Like you invest like 7 to 18 lakhs in the setup. It's a two-way. Either you can buy, it's a gig, जैसे CPU वगैरह आ जाता, or you get like 2 to 3 RTX graphics card. हाँ. And वैसे करके you mine and I think you mine Bitcoin. अभी Ethereum भी mine you हो stake रहा है. Ethereum अभी. They shifted to POS, right? Proof of stake consensus mechanism. उसके बाद if you want to become a validator, you have to have 32 ETH. So people are like us, obviously we become delegators and we delegate our ETH. So That just way. for the audience, what is it like being a validator? So validator मतलब क्या? Wherein like you are participating in the mechanism, consensus mechanism, जहाँ आपका transaction approve होता है, block approve होता है, right? So like if you see,
blockchain actually means approving blocks, and it is called chain just because एक block दूसरे block से linked है by a transaction, by a hash. Yeah. So that is what blockchain is essentially, right? So validators क्या करते हैं? They simply approve whether a block, all the transactions in the block are correct or not. This is what validator is, and they have to deposit some certain amount with the ecosystem, the network, and if so what the ecosystem does, it promotes good behavior and it disincentivizes bad behavior. So for it also penalizes the person if you are doing some let's say misbehavings, or if you're trying to change numbers. So which is why proof of stake is kind of better than Proof of stake work. is like there are many consensus mechanisms, but the reason why it is better because it is environment friendly, because you don't require high graphic cards. Essentially you don't require that computing power, because in apna ye proof of work you actually had to cryptographically break the algorithm, or so I'm not sure. SHA 256 or 456, that was their previous 256, right? So that was their previous algorithm. They had to work in it, break it. For that they required high graphic cards. Isliye BTC still requires a lot of mining power. Yeah. I mean, I've But seen yeah, videos. Yeah. इतने बड़े बड़े फार्म्स लोग कोई तो ज़मीन का खरीद रहे थे कहीं और, एंड दे आई डोंट नो, दे बिल्ड सो मच, इतने सारे कंप्यूटर्स लगे रहते हैं. I've seen a drone shot. Yeah, I've seen a drone shot of that happening. It just goes from here to here like it's an Amazon warehouse, something like that. Huge. So yeah, I guess we should talk about like blockchain technology. Like India government भी RBI I guess में recently पढ़ा कि वो blockchain technology के ऊपर ये करे, and there are many companies who are shifting to blockchain technology. Like I guess we talk about that. क्या लगता है blockchain technology में क्या क्या आगे ये रहेगा? I also feel कि voting में why can't someone implement blockchain in voting? क्योंकि ऑनलाइन वोटिंग में यू आर ओके, बहुत सारे नेता के बोलेंगे कि हैक कर रहे हो समथिंग लाइक दैट, बट व्हाट इफ यू इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन इनटू इट? इज देयर अ प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट एज ऑफ नाउ, या टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा वेट करना होगा? I'm not sure how the technical aspects would work, but definitely it is possible. और बहुत जगहों पे यूज़ होता है और हम लोग को पता भी नहीं है. फॉर इंस्टेंस लाइक कोविड के टाइम पे इफ़ यू हैड टेकन 2 वैक्सीनेशन शॉट्स, आपको एक कार्ड मिलता था कि यू आर सर्टिफाइड, राइट, टू ट्रैवल थ्रू ट्रेन्स एंड एवरीथिंग, राइट? So that entire card, it was built and verified on blockchain only. Oh. It was built on Polygon ecosystem. And government, yeah. Okay. So we don't know how we are using technology. It is like that only. But they are still kind of against it. They really hate crypto, but they are okay with blockchain. But like they are essentially the same. Like, how will you incentivize the miner or staker if you're not paying them in crypto? Maybe they will learn that later. Yeah, I think they have. SEBI recently said that we are interested in regulating the tokens that act as securities. जैसे वहाँ SEC है US में, SEBI was also taking interest, unlike RBI. Now RBI is obviously afraid because like if people start using crypto more, like then who will use INR? Who will use rupee? That is the question. So they are also right at their perspective, because to be honest काफ़ी scams हुए हैं. बीच में ED का भी प्रॉब्लम हो गया था, WazirX, और if you are aware of the incident. Yeah, right. WazirX. तो some Chinese companies used WazirX to launder the money and bring it to China again, mainland China. So that is the reason why the ED and RBI are a bit strict, but they should also be. It's not wrong to be cautious, but overtly cautious doesn't make sense. And you cannot. They tried banning it obviously in 2018. It did not work because how can you ban technology? Like, yeah, people will use it anyways. People are going to use it. You will have to create a robust system. The filter should be so good that just like how rupee works, like कि if you are doing something, if you are मतलब स्कैम कर रहे हो किसी को, बट रूपी के केस में क्या है, वेब2 के केस में यू कैन डिटेक्ट दैट वेरी इजीली, बट यहाँ पे वेब3 के केस में यू कांट. तो वैसे अगर रोबस्ट सिस्टम बन सकता है बाय RBI एंड दे कैन क्रिएट लॉज और रेगुलेशंस उसमें, तब जाके मे बी दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट. बिटकॉइन से मे बी चालू होगा एंड देन स्लोली दे विल कीप ऑन गोइंग, ETH, Solana एंड ऑल दैट. Yeah, I think they are tracking financial transactions. FIU जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की, they have partnered with मतलब if अगर आप एक्सचेंज हो तो आपको वहाँ रजिस्टर होना पड़ता है एज एन FIU. तो दे आर वर्किंग ऑल द एक्सचेंजेस जिनको बैन भी कर दिया था अभी, ऑल फॉरेन एक्सचेंजेस. बाइनेंस बैन हो गया था, KuCoin बैन हो गया था. नाउ दे आर नॉट बैंड बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड देयर कंप्लायंस विद द FIU.
So they are closely monitoring these kind of exchanges. जहाँ से people there can be flight of money outside India. So यहाँ there are like so many considerations actually. मतलब so they are working, but some departments are still very conservative. It's like now we see government as a whole, but government में अलग अलग डिपार्टमेंट के भी अलग अलग व्यूज होते हैं. लाइक सो इट इज़ अबाउट दैट. लाइक इनकम टैक्स का अलग व्यू है कि इसके ऊपर 30% लगेगा. इट इज़ एज गुड एज गैम्बलिंग. यू वोंट गेट एनी लॉसेज और एनीथिंग दैट यू लाइक. So many people have also said it ki like it's like partners in profits only. Like you're only, if I earn profit, then you are taking 30%. If I earn loss, you are not giving me set off. Yeah. So it's about that. GST is also like saying different. They want to tax bitcoins. It is like that. Achha, okay. GST so- on Bitcoin. No, matlab for example, if you have USDC, right? Now you are converting it into INR or USD. Yeah. So Just for the audience, what is USDT and USDC? Okay, USDC now one USDC is equals to one USD, right? It is essentially a stable coin. So what a stable coin is, it is essentially a crypto whose value is pegged to the dollar. Yeah. So मतलब अभी some people are afraid to buy Bitcoin or other crypto because उसका value fluctuate हो सकता है. But if you want to keep your assets safe and also keep it in crypto, you can use USDT, USDC. Yeah. I mean, अभी शायद थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है कॉन्वर्सेशन से, बट USDT का अभी आई सॉ देयर रिपोर्ट, देयर क्वार्टरली रिपोर्ट. दे अर्न व्हाट इन प्रॉफिट्स 4.5 बिलियन एंड इट वाज लाइक मोर देन टेस्ला इन प्रॉफिट्स. लाइक कैन यू बिलीव, टॉप 10 जो कंपनीज में आती है टेस्ला, एंड दे हैवंट अर्न दैट. एंड यहाँ पे USDT आती है एक Web3 कंपनी, दे आर अर्निंग जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, राइट? वो इन्वेस्टमेंट से उनके प्रॉफिट आ रहे हैं. Yeah, I know startup. Abhi very new startup. They raised 5-6 million. We also handle their finances. So what they did is whatever money they got, they simply converted it into BTC and ETH. Now they are sitting on an unrealized gain of 400-500K. They have not even started their startup. मतलब 4-5 महीने हुए वो लोग. मतलब दिस इज क्रेजी. अभी के लिए मतलब इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि मुझे बिजनेस मॉडल में क्या करना है, यू कैन जस्ट डू दिस. No, they thought like it will be safe, and it was more than safe. या But yeah, अगर गिरा होता तो again. So इस USDT लाइक कितना फ्लक्चुएट है? इट्स लाइक वो USD जैसा ही है, लाइक इंडियन के टर्म्स में, लाइक इंडिया मार्केट के हिसाब से USD में अभी जैसे इट्स 79, कभी 78 होता है. right? तो वो US मार्केट के हिसाब से इट इज फिक्स्ड टू देयर डॉलर. अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? नाउ इफ यू सी वन USD इज इक्वल्स टू 83-84 INR चल रहा है रेट. बट अगर आप बाय करोगे आपको 89 दिखेगा, 89-90 दिखेगा. तो ये एक गैप डिफरेंस है. क्योंकि देयर इज नॉट इनफ USDT DC इन इंडियन मार्केट्स. मतलब इसलिए उसका भाव ज़्यादा है. इसलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, दे डू आर्बिट्रेज ट्रेडिंग. मतलब स्पेशली सम पीपल आउटसाइड इंडिया. इसका एवरी मंथ आई गेट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेरीज कि इज़ इट लीगल और कैसे करना चाहिए. सो लोगों को क्या करना है, बाहर से USD में 83 पे खरीदना है और यहाँ 89 पे बेचना है, 90 पे बेचना है. Right. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इंडियंस आर डूइंग. सम पीपल आर सेलिंग एटलीस्ट 5-6 is quite less. 8 to 10 lakhs of USDT per week they are selling. 8 to 10 lakh rupee Indian rupees. हाँ, That's a huge number. So मतलब how does that happen? मतलब 10% का प्रॉफिट फिक्स हो गया है ना वो लोग का. Yeah. So मतलब how does it happen? मतलब उनको अलग से एक PC लेना पड़ता है, VPN में ही हो जाता है या वर्चुअल मशीन? नहीं, यहाँ अगर देखो, अगर आप इंडियन पर्सन हो, आप INR में ही कमा रहे हो तो आपको कुछ काम ही नहीं, आपका मतलब ही नहीं है. पीपल हु आर अर्निंग इन USD दे आर गेनिंग. जिसको USD जो एक्चुअली बाहर है और USD का एक्सेस है उनके पास, वो लोग ये कर सकते हैं. इंडिया में एक तो देयर इज यू शुड बी एबल टू अर्न USD. अगर आप इंडिया में बैठे बैठे INR कमा रहे हो तो आपके लिए मतलब नहीं, आप USD बाई करोगे और बेचोगे तो यू कैन डू दैट. बट आप पे एक लिमिट भी आ जाएगा. मतलब फेमा के हिसाब से 250K लिमिट है. 250K USD. मतलब आप अगर पहले आपको USD बाई करना पड़ेगा, राइट, बेचने के लिए USDT में. तो USD का 250K के ज़्यादा बाई नहीं कर सकते आप LRS के अंदर USD. So like इंडिया में यू आर बाइंग इट 89, वहाँ से तुमको 83 में मिला, बट वापस तुम उसको 89 पे बेच रहे हो. सो हाउ विल यू मेक प्रॉफिट, राइट? हाँ, मतलब That's simple. it's quite limited also if you want to do it. So is it regulated by it? Like कि
It's like no one is See, tracking people who are doing it outside, it. they मतलब उनको रेगुलेशन नहीं आता बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड इन इंडिया. Correct. इंडियन पीपल, जैसे मैंने बोला, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो अप्लाई होगा उन लोग को. सो देर आर लॉज, बट ऑब्वियसली सिंस अभी रेगुलेशन में हर एक जगह प्रॉब्लम आता है अभी. एज आई सेड, आई वाज टॉकिंग अबाउट GST डिपार्टमेंट. सो नाउ इफ़ यू हैव USDT एंड यू वांट टू सेल इट, सो उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि उस पर GST लगेगा. मतलब सिर्फ कन्वर्ट करने पे लग रहा है. क्योंकि यू आर सेलिंग USDT एंड दे आर सेइंग कि मतलब GST लॉ में क्या है, जो चीज़ें एग्जेम्प्ट है उस पर नहीं लगेगा GST, बाकी सब पे लगेगा. तो ये एग्जेम्प्ट में आ रहा है. दिस इज़ अ वेरी रॉ मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ देम. दे आर कंसिडरिंग दिस एज अ डिजिटल गुड. सो मतलब 18% वैसे टैक्स लगाएंगे वो लोग. 18%? हाँ. सो दिस इज, सी, ऑफिशियली दे हैव नॉट सेड इट, बट इफ़ यू आस्क क्वेरीज टू द ऑफिसर ऑनलाइन, दिस इज व्हाट दे गेट. दिस इज व्हाट सम ऑफ माई क्लाइंट्स हैव बीन गेटिंग. कि आप USDT बेच रहे हो, आप 40 लाख के ऊपर का बेचा है आपने टोटल. हाँ. तो उस हिसाब से आपको उसके ऊपर आप जो बेच रहे हो ना, आपको 18% चार्ज करना पड़ेगा. मतलब 40 लाख पे 18% आपको चार्ज करना. फॉर एग्जांपल अगर आप 100 का बेच रहे हो तो यू हैव टू चार्ज 118 टू द कस्टमर. अभी प्रैक्टिकली नो वन विल बाई 118 बिकॉज मैं बाहर के मार्केट्स में 100 में ले लूँगा. व्हाई विल समवन बाई फ्रॉम यू? This is one problem. And second problem is also their interpretation is also quite wrong, because if you see Singapore ने पूरा गाइड निकाला है. They also have GST, they also have income tax. तो they have clearly said कि this is not money. We agree कि ये money नहीं है, ये security नहीं है. आप ये नहीं बोल सकते because it is a financial derivative. अब derivative का basic मतलब क्या है? जिसका value is based on an underlying asset. Now USDT's value is based on USDT. So USD, that is its underlying asset. That is why it is a financial derivative. That is why it is exempt under GST. So this is a like thought through process, thought through answer. Currently, no such answer is available with the authorities right now. I think they are talking about it, but let's see. मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं है. हाँ, ज़्यादा काफ़ी अवेयरनेस ही नहीं है और प्रायोरिटी भी नहीं है. प्रायोरिटी एज इन रेवेन्यू वाइज दे वांट टू, सबको भी दे वांट अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो. सबको क्रिप्टो रेवेन्यूज चाहिए, इसलिए इस पे 30% लगा रहे हैं, यहाँ 18% लगाने का ट्राई कर रहे हैं. प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड आई डोंट थिंक एक्सचेंजेस ऑल्सो डू इट. तो फिर इसमें बहुत सारे स्कैम्स की भी जैसे बात होती है क्रिप्टो में. I guess terrorist funding is one of them, right? या नाउ इसमें काफी हेवी क्रिप्टो यूसेज हो डार्क सकता वेब है में भी Dark web. ट्रांजैक्शन. क्योंकि अभी Exactly. नाउ वी से कि क्रिप्टो इज ऑसम, आई कैन पे मनी एनीवेयर, which is a great thing, but you can also send money to Pakistan. Like, yeah, so that is also... And no one will know. Yeah, and no one will know. अगर आप MetaMask use कर रहे हो, no one will know that you have sent it. मतलब that is crazy. So that is like frightening also. Obviously, Indian perspective, Indian regulatory authorities are seeing this. Also, money laundering भी काफ़ी politicians ही करते हैं. Through using, crypto. Yeah, they are. It is कितना simple है. Like... I mean, I can't imagine जो politicians कितने backward thought है ना उनके, कैसे वो बात करते हैं स्पीचेस में and all that, caste and all that, and फिर I'm listening from you कि वो क्रिप्टो यूज़ करते हैं, which is so ahead. मतलब हमारी जनरेशन ये अभी grasp कर रही है. थिंक लाइक दैट ना, उनके जो एडवाइजर होते हैं वही सब बताते हैं उनको. Yeah, they don't care as long as things get इनफैक्ट done. लाइक PM मोदी वो भी खुद सब नहीं देते. He have a team of advisors वगैरह जो उनके But yeah, so मतलब they might be saying that this is dangerous, but they themselves might be using it. We don't know. Actually, we Right. don't know. I have only heard reports. मतलब So no, in fact, I उसके have दो heard- साइड्स है. मतलब हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता है. उन्हें तो पता है. पहले भी they see, it is not new. The rich people have been managing their funds, मतलब crypto or not. पहले they used to like send money through Mauritius and clean their money from there. Oh, okay. उसको tax haven भी मॉरिशस बोल में रहा क्या है. कुछ तो मतलब नॉमिनी शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स अपने रखवा लिए, तो नाम मतलब बुक्स पे या कंपनी का जो डॉक्यूमेंट रहता है इनकॉर्पोरेशन, वहाँ पे उनका नाम भी नहीं होता. तो ट्रैकिंग बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट. So has there ever been a case कि वो लोग पकड़े जाते हैं कभी इसके लिए, लॉन्ड्रिंग के लिए, जस्ट थ्रू क्रिप्टो? आई नो दैट कोई आइडेंटिटी पता नहीं चलती है, बट हैज़ देयर एवर बीन अ केस? अभी यहाँ पकड़े जाते हैं यूएस में. सी, आपने चलो आई टॉक अबाउट द केस वेयरइन पीपल हैव स्टोलन क्रिप्टो. आपने क्रिप्टो चुरा तो लिया, पर अभी दिखेगा तो आपको, मतलब क्रिप्टो इज ओपन, आपको दिखेगा कि कौन से वॉलेट पे है, राइट? सो अब नाउ अभी आपको अगर फिएट में करना है उसको कन्वर्ट, यू हैव टू गो टू सम एक्सचेंज. वहाँ आपकी आइडेंटिटी पकड़ी जाएगी.
Okay. सो यू मतलब इसलिए काफ़ी बार ऐसा हुआ है, हैकर्स हैव स्टोलन मनी बट दे आर नॉट एबल टू टेक इट आउट ऑफ द सिस्टम ओनली, बिकॉज यू नो यूएस के काफ़ी डिपार्टमेंट्स है, लाइक आई थिंक OFAC इज वन ऑफ देम, ऑफिस ऑफ आई थिंक फॉरेन असेट्स, आई एम नॉट फ्रीज श्योर. कर देते हैं सीधा. या दे फ्रीज द असेट्स, दे टेक ओनरशिप. केस हुआ एक्सचेंज था. देखिए, एक्सचेंज में गया राइट नाउ, सेंट्रल अथॉरिटी है, यू कैन टेल दी एक्सचेंज कि भाई तू ये पैसा फ्रीज कर देने, तो मैं तुझे फ्रीज कर दूंगा. तो क्रेजी. मतलब मैं देखा था एक को, ही हैड सम 25K USD ट्रैप्ड इन हिज बाइनेंस का वॉलेट एंड इट वाज फ्रीज. तो फिर ही वेंट टू हिज लॉयर कि क्या कर सकता हूँ मैं इसमें. तो ही सेड कि आप कुछ नहीं कर सकते, इतने साल जब अब मैं केस लड़ूंगा उतना आपका जो वॉलेट का जो चार्जेस है वो चला जाएगा. हाँ, तो इट्स बेटर इफ यू लीव इट. इंजंक्शन, सो यू नीड टू फाइल अ केस. मतलब अगर आप अलग कंट्री में हो तो और प्रॉब्लम. बाइनेंस कहाँ है वी डोंट नो, आई थिंक इट इज़ इन केमन आइलैंड्स और समवेयर राइट. एवरी वाला Web3 कंपनी में देखता हूँ ना, हेडक्वार्टर्स या तो केमन आइलैंड्स में ही है. मतलब मैं इसलिए जॉब भी मैं देखता हूँ, कोई लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस रखते हैं बट ऑफिस कहाँ है, केमन आइलैंड्स में. हाँ, तो रजिस्टर्ड ऑफिसर्स इन केमन आइलैंड्स. इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ हैविंग एन ऑफिस देयर? सो आई थिंक जो भी टोकन इशुएंस होता है मोस्टली दे हैपन थ्रू क्रिप्टो फ्रेंडली जुरिस्डिक्शंस दैट आर आल्सो टैक्स फ्रेंडली जुरिस्डिक्शंस. सो जो भी ऑफशोर जुरिस्डिक्शंस है सारे वहाँ बनते हैं. सम ऑफ देम आर रेप्यूटेड, some of them are not. For instance, Switzerland is reputed. So काफ़ी foundations वहाँ है. Ethereum Foundation is there, Polygon Foundation is there. Yeah. But again, still it does not mean कि you can privacy वहाँ काफ़ी है, so you won't know who the exact owner is. इसलिए you know Swiss accounts are famous for that reason. मतलब स्कैम से याद आया, देर आर पीपल who can, मतलब फॉर एग्जांपल वी वर टॉकिंग, इससे पहले का हमारा टॉपिक था कि व्हाट इफ दे गेट कॉट इन दिस स्कैम, जैसे एक्सचेंजेस से उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है. सो दीज आर सम फेमस केसेस दैट आई हैव सीन कि हाउ डू दे, आई वुड से रिप्लेस नहीं, पूरा डिलीट ही कर देते अपनी आइडेंटिटी. आई डोंट नो हाउ दे डू दैट बट आई हैव जस्ट सीन सम केस स्टडीज. what do they do is once they get caught ना, they will do is there are some websites, डिलीट मी करके एक वेबसाइट है, इट इज़ अ वेरी फेमस वेबसाइट. मतलब एक बार तुम जाओगे वहाँ पे, अपने कॉन्टैक्ट्स तुम डालोगे, इट विल फिगर आउट कि तुम्हारी डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ थी. 100 से 150 वेबसाइट्स दिख जाएंगे कि यहाँ पे तुम्हारी डिजिटल फुटप्रिंट थी. नॉट डू यू वांट टू डिलीट इट. डिलीट करोगे फ्री में हो जाती है, बट डिलीट हो गई तो डिलीट हो जाती है, यू वोंट बी एबल टू रिकवर इट. तो मस्ती में अगर कर रहे हो तो मत करना. ऐसा हो जाता है कि पूरा डिलीट हो जाएगा, वापस से तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट जीरो है. बट अब प्रॉब्लम क्या है, वो जो फाइल्स है ना, वो अब उनकी कोई तो सिस्टर कंपनीज है बहुत सारी, वहाँ पे चली जाती है वो फाइल. और अब तो भी वो फाइल स्टोर्ड है, तो हमने डिलीट कर दिया डिजिटली, उनके पास है. बट अब उनके पास है. तो गूगल में बहुत सारे ऐसे डेटा कंपनीज है जो डेटा स्टोर करके रखते हैं. अब फिर हमें लीगली, मतलब अगर किसी को गायब होना है तो दिस इज़ द मेथड आई वुड से, कि पहले अपना डिलीट करो डिजिटल फुटप्रिंट. सेकेंड वुड भी कि जैसे ये जो डेटा कंपनीज है वहाँ पे तुम्हें लीगली एक भेजना पड़ेगा, जिसमें भी तुम वापस से ट्रैक हो जाते हो, क्योंकि तुम लीगल हो तो फिर तुम्हारा नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. तो बट तुम्हें वो करना होगा कैसे ना कैसे. अगर तुम वहाँ से भी निकाल देते हो देन तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट चला गया. अब तुम्हें IRL कैसे बाहर निकलना है, मतलब दुनिया से. तो देर आर सम क्राइटेरियाज दैट यू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट दे डू इज़ दे हॉप ऑन अ सिटी जिसमें से 20 से 25 हज़ार लोग हैं. एंड वहाँ पे क्या करते हैं, दे विल जस्ट स्टे इन एन अपार्टमेंट जो एक रजिस्टर्ड कंपनी से नहीं है, जस्ट किसी पर्सनल बंदे का था. ही जस्ट वांट्स टू रेंट इट, और उसको रेंट देना था तो रेंट दे देता है. वहाँ पे तुम रेंट पे रहते हो बेसिकली. तुम्हें ऑफ द ट्रैक रहना है, पूरा ट्रेस के बाहर रहना है. वहाँ पे तुम्हारी फेवरेट चीज़ें क्या है? ब्रेकिंग बैड जैसा लग रहा है. मतलब वो लोग क्या करते हैं, उनको खुद को अपना डिटेक्ट करके रखना पड़ेगा कि मेरी फेवरेट चीज़ें क्या है. मैं जिम जाता था, मैं कॉमिक्स पढ़ता था, मैं गेम खरीदने जाता था, समथिंग लाइक दैट. मेरा फेवरेट खाने का प्लेस ये था, चिक-फिले जाता था मैं, समथिंग लाइक दैट. अब तुम्हें उस जगह नहीं जानी है क्योंकि पुलिस अब वही जगह बैठी रहेगी ट्रैक करने के लिए. नॉट लाइक वहाँ पे बैठी रहेगी तुम्हारे लिए, बट पहला उनका गो टू प्लेस रहेगा वही रहेगा कि ये सब जगह पे पहले देखो इसके ट्रांजैक्शन हुए या नहीं. तो डिसिप्लिन बहुत लगता है, मतलब तुम्हें ये सब गिव अप करना होगा. आफ्टर दैट योर मनी, हाउ डू यू स्टोर इट? यू शुड जस्ट हैव कैश और बिटकॉइन. मतलब दिस इज़ व्हाट यू शुड हैव. एंड उसके बाद में यू जस्ट होप दैट यू डोंट गेट कॉट. मतलब ऐसे ही चलता है. बट देन पीपल,
डू यू नो क्रिप्टो क्वीन का था? Yeah, Crypto Queen. दैट्स हाउ शी डिड. इनफैक्ट FTX का भी वैसे ही हुआ था ना, FTX का फाउंडर वो तो पकड़ा गया, but पकड़ा गया उसने but he gave up. कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया था, उतनी बड़ा मत करो. उसको मतलब क्या I think लाइफ प्रिजनमेंट की सजा हुई, आई गेस. 42 बिलियन ना? 42 Yeah, he- billion, मतलब 44 something. huge corporate governance में मतलब mishappenings थी obviously. जो एनरॉन, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ एनरॉन करके बहुत बड़ा स्कैम हुआ था पहले, उसका ही जो डिसोल्यूशन, पीपल हु मैनेज द डिसोल्यूशन, राइट, तो लिक्विडेटर कहते हैं उसको, तो लिक्विडेटर सेम अपॉइंट हुआ था FTX के लिए. ओके. नाउ इफ़ यू गूगल, एनरॉन वाज अ वेरी बिग स्कैम. एनरॉन हुआ था, उसके बाद पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स्ड. नो, इट वाज दैट बिग अ स्कैम. लूना था फिर. या सो जो वो लिक्विडेटर था उसने बोला कि दिस इज़ द वर्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई हैव सीन. उसने एनरॉन का देखा था, उससे ख़राब ही थॉट कि FTX का है. अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ा रहेगा, जो रिपोर्ट है, फाइलिंग्स रहते हैं, बैंक्रप्सी फाइलिंग्स, वहाँ ही इज़ गिवन डिटेल्ड में कि मतलब पीपल हैव, मतलब एम्प्लॉयज़ को उसने घर ऐसे ही दे दिया है विदाउट एनी थिंग. मतलब उसने स्लैक पे सिर्फ लिखा रहेगा कि आई वांट अ होम, और उसने दे दिया है घर. व्हाट? कोर टीम को कि किसी भी एम्प्लॉय को? आई एम नॉट श्योर कि कौन एम्प्लॉय, बट कोर टीम हो या कोई भी नॉन टीम हो, यू कैन नॉट गिव सच अ बिग. आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैश आउटफ्लो कर रहे हो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट बिकॉज कि उसने, और आपका कम्युनिकेशन चैनल स्लैक है, नॉट इवन ईमेल. No approvals, nothing. So these people, so the problem with many people is like they operate as, since single people only govern this, so they consider it ki like I can do whatever I want. डिसेंट्रलाइज होके भी सेंट्रलाइज ही निकल जाता है बाद में. Yeah, some I can say that, but again, मतलब now governments are catching up, especially UK है, US also at some aspects it is, but UK there is, UAE obviously it is famous for it. या आई मीन आफ्टर 5 years आई विल मतलब सी कि शायद ये सब चीज़ें नहीं होगी, कोई सोचेगा भी नहीं ये सब करने का. क्योंकि जैसे फोकस अभी जो बढ़ रहा है इधर, पहले तो बिल्कुल बात भी नहीं होती थी, अभी बात चालू हुई है कोविड के वक्त, और अब धीरे धीरे लोग कंसिडर कर रहे हैं. Yeah, like you should read the book Crypto Storm if you've read it by Sandeep Khanna. It is a great book. It is about all this only. How did crypto begin in India and also all over the world, क्या-क्या चीज़ें Okay, so it होती is हैं. India specific? Not India specific. It covers, written by an Indian author, इसलिए काफ़ी Indian insights है. मतलब कैसे people, मतलब how it was before FTX ये scam, उसके बाद क्या हुआ. So very insightful book essentially. You'll know a lot कि मतलब फाउंडर्स कैसे आए, फाउंडर्स जो क्रिप्टो के आए, उनका बैकग्राउंड, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द Web2 फाउंडर्स. इफ़ यू सी लाइक इंडिया में जो भी फंडिंग होता है, लाइक 60-70% गोज टू IITs, IIMs. हाँ, करेक्ट. बट इफ़ यू सी Web3 फाउंडर्स, उनका काफ़ी डिफरेंट था. फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज उनका स्टार्टअप स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल था. इवन इफ़ यू सी लाइक वेरियस स्टार्टअप्स, एक्सचेंजेस जो भी खुले, दे आर वेरी प्रॉफिटेबल, मनी मिंटिंग मशीन्स दे आर एक्चुअली. जो अभी जो प्रोजेक्ट्स है, दे आर अ डिफरेंट थिंग. या But exchanges and various core crypto projects, they do quite good. Ethereum, if you see, I don't think many people know this, but Ethereum was the second fastest company in the entire world to reach revenues of $10 billion. Oh. It reached $10 billion worth revenue in 7 years only. Okay. There was only one company who beat Ethereum, and that is Google, Alphabet. It reached $10 billion in 6.5 years. Okay, so there is no company who's beat, it's second. Now just take it $10 for a second. million की revenue reach करने के लिए fastest has been 6.5 years. 6.5 I thought it was like 3-4 maybe. मतलब I never really looked Google Pay and all, but $10 million I thought was easy at this day. Revenue, I'm not talking about valuation. Revenue, pure money, cash revenue. Yeah, I mean. So जैसे ये Web3 में all companies are, so in normal startup ecosystem you have accelerator or incubator who support the startup. So is it same for like Web3 or is there any specific accelerator or incubator who help these Web3 companies to tap into the market? Actually काफ़ी incubators है. One of my clients is also an incubator. 2-3 clients are incubators only. So incubators में मतलब same like Web3 only, but various जो बड़े funds है, they are also incubators. There's like if you are aware, there's some South Korean company Hashed.
Hashed Emergent. So they are fund also, and they also help with incubation and various other processes. So it's very similar concept कि आप मतलब थोड़ा help कर दो funding में, थोड़ा मतलब marketing में, some basic guidance, mentorship, और take some equity also or some tokens also. Tokens का concept, you know, it's Now, quite prevalent. Now what if I throw a challenge to you, okay? Consider it कि कोई reality show में you were brought in and you are the main guy there, okay? Grant Cardone पता है? कैसे उसको reality show में भेजा था, वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूँ. Okay. And you know nothing but you want to get started in Web3. वहाँ पे एक जॉब करना है, एक एंट्री लेवल पे अगर तुम्हें जॉब चाहिए, $20,000 सैलरी जॉब ईयरली, 20-24,000 जो भी है एंट्री लेवल पे, टू गेट देयर एटलीस्ट 0 to 1 का जो स्टेज है, हाउ विल यू डू दैट? अगर अभी के नॉलेज में, इफ़ यू विल एडवाइस टू समवन और समवन वॉचिंग योर. Okay, first of all, buy crypto, whatever it is. Once you are actually invested, then you will take interest in क्या हो रहा है. सीधा अप्लाई कर रहे हो, आपको लग सकता है, नहीं लग सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन. अगर आपका क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छा है कि मतलब यू हैव गुड एजुकेशन, आपने 1-2 साल कोई काफ़ी अच्छी ट्रेडिशनल कंपनी में काम किया है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको जॉब मिल सकता है. आई हैव सीन दैट. जो HRs है, दे प्रेफर कि थोड़ा अच्छा Web2 एक्सपीरियंस हो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग. लाइक इफ़ यू वांट दैट 20+ K package, 20K is like okayish, but if you have some experience, 3-4 साल का experience है Web2 का, people get paid 40K 50K. Okay. So इसमें क्या करना है? I think you should obviously actually know crypto क्या है. Like crypto is, Web3 is for someone who like wants trouble. मतलब कुछ ना कुछ होते ही रहता है. अगर आपने 2 साल काम किया है Web3 में, आपको लगेगा आपने 4-5 साल काम कर लिया है. कभी कभी कुछ ना कुछ होते रहता है. प्लस यू शुड बी अ पर्सन हु वांट्स अनसर्टेनिटी इन लाइफ. इट हैज़ नो स्टेबिलिटी. नाउ एवरीवन इज डिपेंड, मतलब जो अगर आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, सो इन द एंड यू आर अ स्टार्टअप में जो रिस्क है, मतलब स्टार्टअप कैन रन इनटू सम कंप्लायंस इशू बिकॉज ऑफ इट माइट हैव टू क्लोज डाउन. स्टार्टअप कैन रन इनटू फंडिंग इशू, मेजर इशू. ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स रहने वाली है. इफ यू आर समवन हु कैन यू नो कीप एन आई आउट ऑन द मार्केट्स कि क्या हो रहा है मार्केट्स में कंटिन्यूसली. बाद में ऑल्सो समवन हु कैन टेक रिस्क्स. लाइक काफ़ी लोगों को रिस्क नहीं चाहिए. दे वांट टू वर्क इन सम नॉर्मल कंपनी कॉर्पोरेट एंड दे आर हैप्पी विथ इट, राइट. दे वांट दैट सुकून कि 31st को पैसा आ रहा है, आज पैसा आ जाना चाहिए, राइट. सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क इन Web3. बट इफ़ यू आर समवन like who loves these things, like so you definitely go into Web3. और आपको क्या करना है, like buy some crypto, you will come to know about crypto. धीरे धीरे आप थोड़ा और अंदर जाओगे, you will you know actually use crypto. Now I don't actually buy from exchanges, Indian exchanges, क्योंकि आप use नहीं कर सकते crypto को. You can't transfer it anywhere mostly, right? Some exchanges allow, but I can't use Ethereum. अगर मुझे use, अगर if I want to play some game जहाँ थोड़ा ETH use होता है, so I can't do that, right? So आप you actually learn how to use crypto in various places. Try staking, try you know participating in DAOs. I think they are the best form of participating. काफ़ी DAOs है मार्केट में भी, डिस्कॉर्ड पे. What is a DAO? DAO essentially means a decentralized autonomous organization. इसका फुल फॉर्म है essentially like it is based on the fact कि अभी I'll explain it properly. Like normally अभी if you see कोई भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल जो भी अपने नॉर्मल है, दे हैव ओनली वन बिजनेस मॉडल, नेटवर्क्स. नेटवर्क्स मतलब क्या, यू आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म, यू आर डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर्स एंड द सप्लायर्स. मतलब और इट बिकम्स पॉपुलर ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल. यूजर्स की वजह से पॉपुलर होता है, राइट. बट यूजर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता. अभी आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा व्हाट्सएप यूज़ करने का. Now why is someone on WhatsApp? Because सब WhatsApp पे है. तो WhatsApp is WhatsApp because of its people. But WhatsApp is not incentivizing them. मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है तो WhatsApp is not taking the opinion of the people. Yeah. In spite of being heavily dependent on users. अभी WhatsApp पे अगर 1-2 लोग होते हैं तो WhatsApp कोई नहीं यूज़ करता होता. Right. So similarly अभी इस DAO, what does DAO mean कि you are focusing on one thing, one project, and you are involving all the stakeholders, all the users in the decision making process. इसलिए काफ़ी DAOs में क्या है, almost all DAOs, not some but almost all DAOs also, मतलब आपको थोड़ा tokens मिलता है for participating, जिससे काफ़ी लोग एयर ड्रॉप बोलते हैं, राइट.
सो एयर ड्रॉप से आपको टोकन मिलता है. यू कैन यूज दैट टोकन्स टू डू वोटिंग ऑल्सो. अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो यू कैन वोट एंड यू कैन एक्चुअली चेक दिस. सेंट्रीफ्यूज का डाउज है, इट इज़ क्वाइट मेकर डाउ USDC जिसने बनाया, आई थिंक इट इज़ मेकर. ओके. दे हैव देयर ओन डाउ सिस्टम. तो वहाँ हर एक छोटी छोटी चीज़ों का भी रहेगा. अगर मतलब एक में क्या था, एक प्रोजेक्ट के लिए दे वांटेड सम लॉयर, सो दे डिटेल में दे हैड एक्सप्लेन कि इतना ये लॉयर ये काम करेगा, इसका क्वालिफिकेशन ये है, इतना पैसा लेगा, इतना स्कोप ऑफ वर्क है, $25,000 इसका फीस रहेगा. एंड दे डिड अ वोटिंग ऑन दैट. इतना डिटेल में काम होता है. ओके. ऑल्सो यू आर इंसेंटिवाइजिंग पीपल टू पार्टिसिपेट. दिस इज़ क्वाइट ग्रेट. अगर मतलब सी अभी टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अभी रेडिट में काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ. मतलब मेरे सब दोस्तों को भी यूज़ करवाया बिकॉज आई रियली लव द ऐप. बट अभी रेडिट का IPO हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेटर इन रेडिट इकोसिस्टम. If you see this, it is quite different in Web3. Web3 में people who participate, they get airdrops, they get tokens. So ये है mainly DAOs का function. और Web3 का main, wherein users are actually incentivized. अभी Instagram और ये सब का take rate 100% है. मतलब YouTube का 65% है. I've also read this in this book called as Read Write Own by if A16Z का I think founder wrote it. So it is a great book. So it talked about this only कि रेवेन्यू जो जनरेट होता है, अभी जो मॉडर्न मोनोपोलीज कहते हैं हम लोग, जो नेटफ्लिक्स है, गूगल है, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा उसका. इन स्पाइट ऑफ अस गिविंग आवर डेटा ऑल्सो एंड वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन इट. हम लोग को जो इन्फ्लुएंसर्स को जो मिलता है, दे गेट इट बिकॉज ऑफ द डील्स दे साइन. बट इंस्टाग्राम डजंट गिव एनीथिंग टू देम. यूट्यूब थोड़ा देता है, वो भी थोड़ा ही देता है. सो या दैट इज़ वाई Web3 इज़ डिफरेंट. या आई मीन Web2 वर्ल्ड में तो लोग यूट्यूब से ही खुश हो जाते हैं क्योंकि इतना उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है. बहुत ज़्यादा पैसा है. बट एक्चुअल पावर दिखेगा Web3 का तो फिर. अभी एक जन का आया था, ITR फाइलिंग आया था. अभी ये सीजन चल रहा है. वेरी यंग गाय, ही अर्न्ड, अभी किसका हुआ था, स्टार्क नेट का हुआ था ना एयर ड्रॉप, HTRK का हुआ था. ही अर्न 10-12 lakhs ओनली फ्रॉम एयर ड्रॉप्स एक्टिव. एंड उसका ही वॉज ना, मतलब एयर ड्रॉप पर जो रहते हैं, जो एयर ड्रॉप फार्मिंग करती है, वॉज नॉट दैट वन. एक दो इकोसिस्टम्स में उसको काफ़ी इंटरेस्ट था. सो यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दोज इकोसिस्टम्स. इतना ही करता था वो. ओके. सो वहाँ पे नोटिस हो गया एंड देन ऐसे हुआ. मतलब नहीं, एयर ड्रॉप ही मिला उसको. ओके. मतलब एयर ड्रॉप्स में काफ़ी रहता है, यू डू दिस तो आपको उतना एयर ड्रॉप होता है. सो एयर ड्रॉप इज लाइक मैंने कहीं तो पढ़ा था, इट्स लाइक सम गिव अवे वगैरह जो कंपनी गिव अवे समझ सकते हो. बट अगर आपने कुछ, इफ़ यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन सर्टन थिंग्स, अगर आप अगर मेरा लैंडिंग प्रोटोकॉल है, स्टेकिंग प्रोटोकॉल है, मतलब और मुझे एयर ड्रॉप मिलेगा अगर मैंने कुछ स्टेक किया है तो, नहीं तो नहीं मिलेगा. काफ़ी में और सिंपल रहता है क्राइटेरिया. मतलब जितना अर्ली ज्वाइन करेगा उतना सिंपल क्राइटेरिया रहेगा. सम पीपल ऑल्सो गिव एयर ड्रॉप जस्ट फॉर साइनिंग इन. अगर गेम रहेगा तो आपको थोड़ा, इफ़ यू पार्टिसिपेट इन द गेम, you do some kills, then you might get an airdrop. So it is like that. So ये सब कर रहे हैं, पता कहाँ चलता है, like which website या YouTube कहाँ से, like let's say अभी कोई कंपनी का airdrop हो रहा है, so how will I get to know? There are various applications, but Bankless, if you are aware of Bankless.com, Bankless is good. Okay. वहाँ पता चलता है. वहाँ actually they have also tool airdrop hunter करके. It is a paid tool. That tells you exactly कि airdrop hunt कैसे करते हैं. That is for people who only want to do airdrop hunting, airdrop farming करना है. Getting back to that job वाला question, for example, if you were mentoring someone जो finance में, because you have been a CFO, you know this, तो पूरा ही अभी आप जानते होगे. तो फिर someone who is, for example, a BBA student, वो finance कर रहा है, finance में specialization है, अभी graduate हुआ है, and he wants to go कि चलो मुझे Web3 explore करना है, want to get an associate level job there. तो how does he do that? Yeah. Okay, so I'll extend this. I guess you can answer like how did you started your career? How did you went into this? And maybe we can get into that. Okay, like, first I'll talk about the advice, then I'll talk about my career. Yeah, that was too. So advice simple है कि focus सबसे पहले, like I'll talk about commerce people only, those people who are commerce, non-tech backgrounds. Yeah, okay. So because अभी to be honest, most openings are only for tech. You might also be aware कि मार्केटिंग टेक में आप अगर आप Web3 वो पोर्टल ओपन करोगे टेलीग्राम पे, आपको मोस्टली यही दिखेगा. 90% टेक जॉब्स दिखेंगे. सो टू बी ऑनेस्ट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट इन इफ़ यू आर अ नॉन टेक बैकग्राउंड. मार्केटिंग और ये सब नॉर्मल मार्केटिंग में इतना कॉम्पिटिशन है, तो Web3 तो और डिफिकल्ट है. बट या सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन रिकमेंड, मतलब जितने भी लोगों ने मुझे पूछा है जूनियर्स, आई हैव सेड देम कि गेट एन एक्चुअल Web2 एक्सपीरियंस. आई हैव ऑल्सो हैड अ Web2, आई एम एक्चुअली a CA. So
get an actual Web2 experience ki मतलब for example if you want to do marketing, try to get into the best firm that अगर possible है तो, and work there for at least 1 to 2 years. एक बार वो हो, along with that start मतलब ये जैसे मैंने बोला था, participate in DAOs, read, actually invest in crypto. Or secondly, start marketing or networking with people who are into the fields that you want to go. अगर मुझे for example कोई exchange में जाना है तो LinkedIn actually is the best for me, actually has worked for me also. Because I've seen unlike Web2 founders, Web3 founders are humble enough to reply directly. I have earlier when I was looking for a job, I had messaged many people and Web3 people मतलब काफ़ी founders का reply जल्दी आ जाता था कि भाई क्या है, ये मेरा email है, you can contact me here, and they are quite friendly to be honest. So you can also do that side में, but पहले it's obviously preferable to get a Web2 job because Web3 में क्या है, they are still not aware of how things, traditional things work. They are not aware of corporate governance concepts. They are not aware of basic compliances. Compliances अभी जो Web2 में है Web3 में ही apply होंगे, but these people end up overlooking it. Okay. Abhi CC went to prison because of the same. Like he took a risk obviously. Whether to he went in for I think not complying KYC AML something like that. Yeah. So like that is a risk that Binance took, right? So वही है. So if you work in a Web2 environment, आपको you will come to know how the normal regulatory environment works. If you are a lawyer, you have to know the law of the land क्या है, और you have to see actual cases क्या हो रहे हैं. Because now अभी क्या होगा, आपको Web3 people को फोर्स करना है कि आप Web2 के लॉज फॉलो करो. So आपको Web2 के लॉज आने चाहिए उसके लिए. Like irrespective, अगर आप लॉयर हो तो you have to know all the laws. अगर आप अकाउंटेंट हो या CA या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो इन्वॉल्व विद फाइनेंस, यू शुड नो कि उनके एथिक्स क्या है, राइट? सो यू हैव टू नो कि IFRS क्या है, AC मतलब अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो, UK का कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. US का यू हैव टू फॉलो गैप, इंडिया का इंडियन AS जो भी स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो वो सब फॉलो करने पड़ेंगे आपको. सो या दैट वुड बी माई एडवाइस. एंड अगेन एज आई सेड, वेब अगर एक बार ये हो गया है, you will have to network because it is very difficult to get without, directly मिलना काफ़ी difficult है. मतलब networking के बिना I think it is, आप if you apply to 10,000 jobs then एक दो मतलब 100-200 से आपको कॉल आ जाए तो आ जाए, बाद में आगे उसमें से 1-2% चांसेस है कि हो गया नहीं हो गया. So it is about your numbers essentially. So I guess in networking के लिए जैसे जो events होते हैं टोकन 2409 और भी मेरे ख्याल से Web3 इवेंट्स होते रहेंगे, राइट? पीपल मेनली जिसने फंड रेज कर दिया है वो लोग जाएंगे वो इवेंट्स पे. करेक्ट. टोकन 204 अभी इंडिया में तो नहीं है. लाइक आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू अफोर्ड टू गो देयर. तो बट ये जो कम्युनिटी मीटअप्स हैं वहाँ यू ऑल शुड स्टार्ट गोइंग, बिकॉज टेकीज गो, मतलब जो टेक स्टूडेंट्स हैं वो लोग, इफ़ आई गो टू सम इवेंट, क्रिप्टो इवेंट, आई कीप ऑन गोइंग टू द क्रिप्टो इवेंट्स बिकॉज कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू गोइंग ऑन. अभी इफ़ यू सी ये साल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन जीरो नॉलेज प्रोजेक्ट्स एंड डीप इन्स, इफ यू हर्ड अबाउट दैट. या so it's quite interesting, but it's only filled with tech students and they directly talk to the founders, and if they feel कि इसको मिलना चाहिए तो they give him the job. But कॉमर्स वाले तो मुझे एक भी नहीं मिला. So like as I said earlier, like how did you started career में, फिर कैसे you switch into Web3? So you earlier said you work in Web2 company, right? Yeah. So let's say if you are switching same role, तो Web2 से Web3 में JD में कितना percentage का फर्क होता है? As in let's say if you shift from Web2 to Web2 and the same job, same role, you will still have like minor difference of 10 to 20%. So like how big gap in Web2 to Web3 in same role? How is it like? Okay, so I'll give you some of my background. I'm a CA and I've done my CFA L1. Next year I'll give my L2. Okay. Okay, so I did 3 years articleship जो रहता है CA में, वो तो किया. उसके बाद I joined a startup consulting firm focused on Web3 projects only. Okay, so from there you got an exposure. Yeah. From there I got Mansa Consulting, was that? No, Mansa is different. I used to work with Ascent. मतलब काफ़ी Web2 Web3 projects थे AI के, और मतलब स्टार्टअप मेनली फोकस्ड ऑन स्टार्टअप कंप्लायंसेस और वो सब था. वहाँ से थोड़ा कॉन्टैक्ट्स बना, बट कॉन्टैक्ट्स टू बी ऑनेस्ट इतना काम में नहीं है. देन आई बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई गेन्ड, आई स्टार्टेड अप्लाइंग एंड देन आई गॉट इन मैजिक क्राफ्ट. देयर आई वाज अ फाइनेंस accountant manager
एंड देन आई बिकेम CFO बाद में. या आई मीन मैजिक क्राफ्ट का तो सही लगता है मुझे देख के. Yeah, it's not that it's okay. It's quite a good project because काफ़ी games है. People मतलब काफ़ी वो लोग का जो games है Web3 में मार्केटिंग पे ही फोकस है. They are not actually building the game. काफ़ी games है मतलब their tokens are doing so well but game ही नहीं बना अभी तक. So yeah. मैजिक क्राफ्ट का गेम नहीं बना है? नहीं I am talking about other games. अच्छा. Yeah, Magic Craft is a live game. That is the best part about it. It is a live game. You can play it anywhere. You can play it on your PC, laptop. And I've played the game and I also really like the game. So that is the thing that I'm really glad about कि it is an existing game and it actually has some utility. क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट देखे. I think I've seen as I said 40+ projects. काफ़ी प्रोजेक्ट्स में आपको कुछ अलग दिखेगा ही नहीं. Yeah, they are just riding the hype. या दे जस्ट राइडिंग द हाइप. और मतलब कभी बार तो बहुत बार क्या होता है कि नॉर्मल स्टार्टअप की तरह फाउंडर को फंड रेजिंग मिल गया है, ठीक है, अभी खुद का सैलरी ड्रॉ करेगा एंड दैट इज इट. वही केस चल रहा है. मतलब वेब 2 में भी थोड़ा चल रहा है. वेब 2 आई थिंक दिस पार्ट में दोनों सेम है. या मतलब दे जस्ट ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड होने के लिए एंड बस दैट्स इट. अपना साइज दिखा देते हैं. हायरिंग एंड फायरिंग. हाँ मतलब वही हुआ 21 में तो काफ़ी हुआ है, अभी भी हुआ है एक्चुअली. Even various big projects, they are also not doing that well. There was one thing about Bitcoin that हमने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले हमने छोटा सा ऐसी कॉन्वर्सेशन किया था. I just want to throw some questions at you. Bitcoin का utility everyone talks about. This is as far as I know peer to peer है. Transaction it is very seamless, directly हो जाता है. Just takes like a minute. Max and it will go straight to your wallet. And second is कि your identity never gets revealed वहाँ पे. अब ये 3 चीज़ों का केस में अगर बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल UPI जो है इंडिया में लॉन्च हुआ है, बाहर ज़्यादा लोग को पता नहीं है. तो मे बी इफ़ दे वुड बी अवेयर तो शायद वो लोग अगर UPI टेक वहाँ पे एनेबल हो जाए उस कंट्रीज़ में भी, तो शायद लोग वही यूज़ करने लगेंगे बिटकॉइन की जगह. एंड सेकेंड इज़ दैट पीयर टू पीयर वो भी UPI सॉल्व कर रहा है, सीमलेस भी UPI सॉल्व कर रहा है. एंड जो बिटकॉइन फिर जो करेंसी की बात हो रही है, दे आर ऑलरेडी लॉन्चिंग देयर ओन CBDCs जो ऑल्टरनेट्स होंगे मे बी अपने करेंसी की. E-Rupee भी लॉन्च होने वाला है. हो गया E-Rupee. ओके, लॉन्च भी हो गया. तो फिर इफ़ दैट्स द केस, तो फिर डू यू थिंक दैट पीपल आर गोइंग टू यूज़ बिटकॉइन इन द फ्यूचर? उसका जो वैल्यू अभी भी लोग बात करते हैं, इट्स गोइंग टू रीच 1 million इन लाइक 2030, जैक डॉर्सी जस्ट सेड. तो डू यू स्टिल थिंक कि इन द फ्यूचर इट माइट बी रेलेवेंट एनीमोर? See, first of all, like if you've read the Bitcoin white paper, it clearly says that it is a P2P payment system. तो उसका काम क्या है? It is not something जिसका वैल्यू मतलब you can find वैल्यू. मतलब हम लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि वैल्यू क्या है, कुछ वैल्यू नहीं है. गोल्ड में तो एक्चुअल वैल्यू है, राइट? मतलब शेयर्स मैं बाई करता हूँ तो उसके पीछे पूरी कंपनी खड़ी है, तो बिटकॉइन के पीछे क्या खड़ा है? देयर इज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ये बोलते हैं, दे आर राइट. देयर इज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू. It is completely based on the forces of demand and supply only. Very simple. But each and every currency is also based on the same principle. USD is also based on the demands of and the supply forces and demand forces. आप बोलोगे कि USD is backed by gold, right? Gold reserves है. It's not anymore ना? Yeah, fiat है, मतलब certain percentage है, वो percentage is very small. It is 3-4% only. Oh. So जो मनीज है, फियाट मनीज है, दे ऑपरेट ऑन द फैक्टर ऑफ ट्रस्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम. वी नाउ आई यूज INR बिकॉज आई ट्रस्ट द RBI. आई नो कि इसका वैल्यू काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए आई डोंट नीड टू यूज़ क्रिप्टो, राइट? इफ़ यू सी मतलब बिटकॉइन कहाँ ग्रो हुआ है, मतलब जहाँ जब भी देयर हैव बीन इकोनॉमिक कोलैप्सेस, वो जगह पे बिटकॉइन या क्रिप्टो ग्रो होना स्टार्ट हुआ है. ब्राज़ील में जब उनका करेंसी फॉल हुआ था तभी बिटकॉइन ट्रेडिंग बढ़ गया था. टर्किश इफ़ यू आर अवेयर, टर्की में लीरा फेल्ट टेरिबली. इसलिए वो टाइम पे बिटकॉइन केम एज अ हेज कि अगर मतलब इट इज़ अ गुड हेज ऑल्सो, इट इज़ अ गुड ऑप्शन दैट पीपल डिड नॉट हैव अर्लियर, राइट? अभी लाइक इफ़ यू सी लाइक इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग इन दिस. इफ़ यू गो लाइक इमेजिन योर मतलब ब्रेड का वैल्यू अभी 10 रुपये है, 10 लाख हो गया, आप क्या करोगे? वो कहाँ था? मे बी इट्स जिम्बाब्वे, राइट? सो हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको. लाइक सो बिटकॉइन और क्रिप्टो एक्ट एज अ गुड हेज इन दीज इकोनॉमीज. अभी लाइक आई वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल.
उसका ये ड्रॉप शिपिंग का ये बिजनेस था टफ्ट्स का, राइट. सो ही यूज्ड टू सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उसको अफ्रीकन कंट्रीज से ही सेड, उसने देखा कि उसको रिक्वेस्ट यूजुअली इसमें आते थे बिटकॉइन में. एंड नाउ व्हाई? बिकॉज वहाँ पीपल हैव मोर एक्सेस टू क्रिप्टो दैन फाइनेंशियल बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम. उनके लिए जहाँ बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्रिप्टो इज एक्टिंग एज अ गुड रिप्लेसमेंट. एंड इट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, बिकॉज जहाँ मतलब बैंक्स नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ क्रिप्टो पहुँच रहा है और उनको फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड यूटिलिटी. सो इज देयर एनी पेमेंट गेटवे जो बिटकॉइन को सपोर्ट करती है, जस्ट लाइक Razorpay डज और Stripe? There are some payment gateways. I'm not sure about PayPal. I think PayPal does or does not do. I'm not sure about that. But वहाँ they have their own wallets. मतलब कोई तो Ecuador, कोई तो country, South American country where they accepted Bitcoin as a legal tender. I forgot its name. Quite popular. Yeah. So they also had their own wallet, and they also gave each and every person $25 or $50. I'm not sure. In Bitcoin to every citizen. In Zimbabwe? Not Zimbabwe, some South American country. Ecuador. अच्छा, there's Ecuador, El Salvador भी है. El Salvador और San Salvador, दोनों में से कोई एक है who did this. Okay. So yeah, और मतलब बात रही like as me, I don't use Bitcoin as a means of payment. I also don't hold because I have UPI, to be honest. अभी कोई इंडिया में no one is accepting Bitcoin as such, right? Yeah. So I don't need Bitcoin. अभी सी यूपीए के पहले भी देर आर वेरियस. अभी आपके पास IMPS था, RTGS था, NEFT था, राइट. फिर भी दे UPI आया, राइट. एंड इट वॉज गुड ओनली फॉर अस इन स्पाइट ऑफ सम लिमिट्स और या जो भी है, इट इज स्टिल क्वाइट गुड. सो द पॉइंट इज नॉट कि हम लोग यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, बट द पॉइंट दैट वी हैव एन ऑल्टरनेटिव इन केस सम सिस्टम फॉल्टर्स. यू ऑलवेज हैव अ गुड ऑल्टरनेटिव, राइट. और इफ़ यू सी दूसरी एक चीज़ है लाइक ट्रांजैक्शन हर एक में UPI में भी इफ़ यू सी काफ़ी इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व तो है ही. देयर इज पेमेंट बैंक, रिसीवर बैंक, बीच में एक क्लियरिंग एजेंट रहता है. देयर आर आई थिंक 5 to 6 पीपल इन्वॉल्व जस्ट बिहाइंड द UPI. मतलब आपका पैसा जा रहा है, इट इज़ इन्वॉल्विंग दीज मेनी पीपल, अनलाइक P2P बिटकॉइन. आई जस्ट रेड येस्टरडे सम पर्सन ट्रांसफर्ड $1 billion इन बिटकॉइन और उसको ट्रांजैक्शन फीस $7 लगा सिर्फ. ओके. एंड आई एम प्रिटी श्योर ये कहीं भी पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल सिस्टम में आप नहीं कर सकते. कोई भी अगर आपको पैसा कहीं भी इंटरनेशनली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको 3-4% डिडक्ट होगा ही आपका. दैट्स फॉर श्योर. सो दैट ये एक एडवांटेज है कि आप इंटरमीडिएट्स को हटा रहे हो. उनकी वजह से यू आर एक्चुअली अर्निंग मनी, यू आर सेविंग योर मनी, राइट. और इफ़ यू सी लाइक सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, यू हैव बॉट क्रिप्टो. हाउ हैव यू बॉट क्रिप्टो? थ्रू MetaMask. वहाँ पे मतलब मिल जाता है. एंड देन आई आल्सो हैव Binance. तो फिर एक्सचेंज इससे भी आपने लिया है, राइट. आपने शेयर लिया है कोई? या आई स्टिल होल्ड BNB. नहीं, शेयर एज इन नॉर्मल शेयर, स्टॉक मार्केट. हाँ. या आई तो ट्रेड देयर एक्टिवली. कौन सा लिया अभी मैंने अदानी पोर्ट्स भी लिया था. कैसे लिया? वो डायरेक्टली Zerodha से मैंने लिया था. Zerodha से लिया. तो आपको अलग नहीं लगा कुछ दोनों में? नो, Binance एंड Zerodha में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा. इफ़ यू आर अवेयर कि Zerodha इज़ अ ब्रोकर ओनली. लाइक इफ़ आप क्रिप्टो में यू आर डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम द एक्सचेंज. और जो नॉर्मल अपने सिस्टम्स है वहाँ आपको ब्रोकर की ज़रूरत है. अभी आपने सोचा कि क्यों ब्रोकर की ज़रूरत है? ब्रोकर ऐसा क्या अलग कर रहा है जो एक्सचेंज नहीं कर सकता? ओके. अगर आप देखो, इट इज़ जस्ट लाइक ग्लोरीफाइड पेमेंट, मतलब पोर्टल ही है ना, POI ही है. अगर BSE और NSE खुद ऐसा बनाते, डायरेक्टली आप वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट सेटल कर सकते, तो आपको Zerodha की क्या ज़रूरत थी? आई मीन यू डोंट नीड Zerodha. सी अभी क्रिप्टो में लाइक इट्स नॉट अबाउट क्रिप्टो, इज अबाउट ब्लॉकचेन. यू कैन ट्रेड, एग्जीक्यूट एंड ट्रांसफर, सेटल ऑल टुगेदर इन रियल टाइम. आपका T+1 टाइम जाता है नॉर्मल सिस्टम्स में, टाइम भी ज़्यादा जाता है. आप अलग अलग क्लियरिंग पार्टीज को भी CDSL और NSDL भी इन्वॉल्व होते हैं, डिपॉजिटरीज इन्वॉल्व होती है, राइट. इतने सारे लोग इन्वॉल्व, ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग अपना कट लेते हैं. जस्ट इमेजिन दिस बीइंग एंटायर योर फाइनेंशियल मार्केट्स एंटायरली बीइंग ऑन ब्लॉकचेन. यू वोंट नीड Zerodha, यू वोंट नीड एनीवन. यू आर डायरेक्टली बाइंग और डायरेक्टली जैसा आपने बाई किया वैसा आपके पास आ जा रहा है वो असेट. एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. सिंगापुर
is actually planning on doing this. They have their own white paper and they are also thinking of doing this in the traditional stock markets. I talked to a banker who's not only he but various people in his family members, they are based in various banks across Hong Kong, across Australia. He said, matlab, I was taking the seminar in C Institute and he said, and I said कि 2030 तक they say कि हो सकता है 2030-40 तक, but he said even quicker हो सकता है. Okay. So अब आप मतलब आपका तो वेस्ट ही हो रहा है. आप जो पैसा दे रहे हो, जो परसेंटेज आप दे रहे हो जीरोधा को, इट इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग. इट इज़ नॉट गिविंग. और आप स्टोर, ऐसा थोड़ी है कि जीरोधा में स्टोर हो रहा है. इट इज़ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, कस्टडी की भी ज़रूरत नहीं है आपको. तो क्रिप्टो में सेल्फ कस्टडी हो रही है. जो मार्जिन रहता है उसके सिवाय वाई डू आई नीड टू पे एक्स्ट्रा. Okay. दिस इज ऑल्सो रीजन वाई काफ़ी लॉबी अगेंस्ट होता है क्रिप्टो के, बिकॉज फाइनेंशियल सिस्टम्स डोंट वांट क्रिप्टो टू कम इनटू देयर टेरिटरी, बिकॉज उनको पता है कि उनका मार्जिन कम होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है. Yeah, that's crazy. So we talked about a lot of things. I mean, Web3, crypto, we even went to Web2, we even went to RBI, we even went to कि कैसे आप गायब हो जाते हो इस दुनिया से. and yeah, I mean, so मतलब काइंड ऑफ ऐसे कर्व बॉल्स फेंकना ये पॉडकास्ट में वी आर थिंकिंग कि ये करना चाहिए हमें. सो दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इन दिस एपिसोड. वी हैव व्हाट प्लान टू डू इन दिस एपिसोड एज वेल. होप यू लाइक दिस पार्ट एंड या तरुण. या सो वेरी एक्साइटिंग. अभी हम लोग नेक्स्ट जो कंटेंट बनाने वाले, इट्स गोइंग टू बी सम न्यू अदर टाइप ऑफ जॉब रोल्स जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए. एंड सेम गोज विद मानव. सो या स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट. सी यू देन. या नेक्स्ट का बस मैं ऐसे ही बता दूं कि नेक्स्ट एपिसोड किस पे होने वाला है. बेसिकली अभी एंट्री लेवल जो रोल्स है मोस्टली वी आर गेटिंग इट एज फाउंडर्स ऑफिस में काम कर रहे हो, या तो EIR थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, चीफ ऑफ स्टाफ में तुम काम करते हो. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि इन तीनों में से इन तीनों का डिफरेंस क्या है, इन तीनों का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है अपने अपने जॉब रोल में. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सिर्फ हम दोनों रहेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी 20-30 मिनट एपिसोड. एंड हम वही बताएंगे कि ये रोल्स है क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड रोल है. लोगों को पता ही नहीं है कि फाउंडर्स ऑफिस और EIR क्या है, एंड उस पर आगे इंसेंटिवाइज कैसे करता है, क्योंकि वो भी थोड़ा अलग काम करता है. एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. या हाउ डू यू नेविगेट इट बेसिकली. करेक्ट. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू हर्ष. थैंक यू.